नेम इज किंगडम क्लासिफिकेशन. सी हम लोग के चारों तरफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग बींग्स हैं एंड दैट इज़ वेरी वास्ट नंबर. सबकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, डिसिमिलर होते हैं. सो हाउ कैन वी मेक देम ग्रुप ऑल्सो एंड हाउ कैन वी मेक देम अंडरस्टैंड ऑल्सो, राइट, एंड हाउ कैन वी मेक देम रिमेंबर ऑल्सो. ठीक है, फर्स्ट थिंग. और सेकेंड थिंग क्या है कि हर एक जगह पे हर एक एनिमल को अलग नाम से बोलते हैं. ओके, सो अगर एक स्टेट में एक नाम है, दूसरे स्टेट में अलग है, मे बी कंट्रीज में अलग हो जाते हैं. सो फॉर दैट रीजन वी हैव टू मेंटेन वन स्टैंडर्ड ना, स्टैंडर्ड नेम ऑल्सो, स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्ड सिमिलर एंड सम स्टैंडर्ड डिसिमिलैरिटी. ठीक है, ओके. सो फॉर ऑल दीज रीजन्स वी विल study today kingdom classification. Okay. Yes, ma'am. So see, I have written some of that. In the first line only, you can see there are millions of organisms, right? Millions of organisms. Just right now I told you, na, millions of organisms are there in Earth. They are on Earth. So how can we discover them? How much we will analyze them? See, we have to study the mode of nutrition, their habitats, and they have some individuality, right? They have their own some characteristics. जैसे कि आप अगर सिंपली देखो कैट फैमिली, आप अगर सिंपली कैट फैमिली देखो तो इसमें आपकी कैट भी आती है, इसमें आपका लायन भी आता है, इसमें आपका टाइगर भी आता है, लेपर्ड भी आता है, टाइगर भी आता है, लेपर्ड भी आता है, पैंथर भी आता है, एवरीथिंग. ठीक है, चीता भी आता है, सब आते हैं. लेकिन इन दैट ऑल्सो बेटा, इन दैट ऑल्सो एवरी वन हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, है कि नहीं? Although they are from the cat family, although they belong to the animal only, but they have their own name, own characteristics, own individuality. Okay, so for this reason, see, I have written need of classification. What is need of classification? First, to study the variety of organism present on the earth, then similarity and the difference in the organism, then whether two different organisms have similar origin or not, similar origin or not. Okay, so these are the some of the basic properties or basic needs that why we do classification, why we do classification. Then second point is a taxonomy. Second word is your taxonomy. Taxonomy is also an important word and it will come by you in every class. Okay, what did you mean by taxonomy? The area of study which involves the identification, classification, that is identification and classification of living organisms. Now see, many times in news आपने MBBS जो पढ़ते हैं उनका एक पेपर होता है टैक्सोनॉमी. आप बार बार सुनोगे, अगर आपके नोन में कोई सुने या पढ़े, या आप कभी मेडिकल के बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है डॉक्टर नेम के बाद कभी कभार, या उनके रूम में कुछ होता है. व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? दैट इज़, वो क्या कहते हैं, वो एक ढांचा होता है और उस ढांचा को याद करते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटा, आई एम ये सुना. अब इस टैक्सोनॉमी में वो लोग क्या पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी में वो लोग हड्डी के स्केलेटन को पढ़ते हैं, हर एक बोन्स के नाम वगैरह पढ़ते हैं. मीन्स दे आर आइडेंटिफाइंग, ओके, दे आर जस्ट आइडेंटिफाइंग द एनिमल or the living organism. Okay, they also classify them. So taxonomy is the biggest branch. Okay, taxonomy is also a big branch of your biology. Okay, and just remember always, Carlos Nicasius is your father of taxonomy. Carlos is your father of taxonomy. Okay, just remember this one. Now see, everything have their specific syntax. Either you are using English, और अगर आप हिंदी भी यूज़ कर रहे हो बेटा, तो सबका अपना एक सिंटैक्स होता है. सिंटैक्स यानी कि आपका एक ग्रामर होता है, राइट, एवरीथिंग. सो सिमिलरली दे हैव ऑल्सो अ बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर. ओके, द इंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ योर लिविंग ऑर्गेनिज्म, they are preparing one system, right? They are preparing with one system. So this system have your entire what? Nomenclature. Okay, they have your entire nomenclature, and for this reason only the system of naming organism is called nomenclature. ठीक है, okay. Now
what this binomial nomenclature includes? They names genus, species. Okay, they have two parts. One is genus and one is species. For example, human being is called as Homo sapiens. What is called? Homo sapiens. Now Homo belongs to your genus and sapiens belongs to your species. Okay, Yes, ma'am. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? आपको समझ में आया ना बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहेंगे? Yes, ma'am. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब आप देखो कुछ कुछ कॉमन नेम्स इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर के. सी यू विल फाइंड इट. जैसे मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका है. इसमें जीनस क्या हो गया आपका? इसका मतलब मैग्नीफेरा, और स्पीशीज क्या हो गई? इंडिका. इसी तरह पपाया, पपाया को क्या बोलते हैं? कैरिका पपाया. तो कैरिका क्या है आपका? जीनस, और स्पीशीज क्या हो गई आपकी? पपाया. ओके, सी इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी. एटलीस्ट दिस वन आपको MCQs में पूछे जाएंगे बेटा. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको किस में पूछी जाएंगी? MCQs में. जैसे कि देखो लायन, लायन को पता है हम लोग क्या कहते हैं? पैंथेरा लियो. तो पैंथेरा इज योर जीनस नेम एंड लियो इज योर स्पीशीज नेम. ओके मेरा चार्ट आप मुझे अलग से भेज दीजिएगा. ओके, श्योर, आई विल सेंड यू. सारे पेजेस तो एक एक करके भेजते हैं हम बाबू. यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर करने का यूनिवर्सल रूल क्या होता है? जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. याद रखना, जीनस पहला वर्ड है तो पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. स्पीशीज नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर. देखिए जीनस का नेम ये है तो ये इसने कैपिटल लेटर में M लिखा है, लेकिन स्पीशीज का नेम क्या है? इंडिका. तो इंडिका उसने I स्मॉल लेटर में लिखा है. क्लियर है ना? Yes, ma'am. When handwritten scientific names are underlined separately. ठीक है, और when typed the name should be italics. Yes. जब आप टाइपिंग में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? इटैलिक्स में लिखोगे. जब आप हैंड रिटन में लिखोगे तब आप क्या करोगे? अंडरलाइन कर दोगे. क्या करोगे बेटा? Underline. देखो इटैलिक्स क्या होती है? जैसे कि आप मानो कि अगर मैं त्रिशा लिखूँ तो ऐसे टेढ़ा. ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा. इटालियन टाइप का वो राइटिंग. हाँ, इटालियन राइटिंग. लेकिन जब आप सीधे सीधे लिखोगे ऐसे करके, जैसे त्रिशा ऐसे लिखा, तो मैं इसको लिखने के बाद ऐसे अंडरलाइन करूँगी. ठीक है, ये इसके रूल्स होते हैं. इसके क्या होते हैं? रूल्स. अब देखो, अब आपका हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? व्हाट इज दिस हायरार्की? See, there is a hierarchy of classification. Means I am doing the separation or simply the distinguish between the entire millions of what? Millions of living organism, right? So it's million of living organism में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाए, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी निकालने को बोला जाए बेटा, तो ये काफ़ी हैवी जॉब हो जाएगा, राइट? और अगर मैं सिंपली जीनस और इसमें भी अगर करूं, मतलब आपके जीनस और स्पीशीज़ में भी करूं, तो भी हमारा हेक्टिक हो जाएगा. इतना सारा तो है, तो हमें और एक हायरार्की डेवलप करनी पड़ती है इस क्लासिफिकेशन की. ओके, क्लासिफिकेशन की क्या डेवलप करनी पड़ती है बेटो? हायरार्की. हायरार्की मतलब सबसे ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, इसको हायरार्की कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? स्पीशीज़. क्या लिखते हैं? क्या है? जीनस. स्पीशीज़ के बाद क्या आता है? जीनस. जीनस के बाद आती है फैमिली. कौन से फैमिली को बिलोंग करती है? ठीक है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? आप क्या बोलोगे? ऑर्डर. कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती है? ठीक है, फिर हायरार्की क्लास में आती है, क्लास के बाद फाइलम में आती है, फाइलम के बाद किंगडम में आती है. क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो जैसे स्पीशीज, लोएस्ट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड्स इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलर कैरेक्टर. मतलब कैरेक्टर्स जो होते हैं वो उनके सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है किंगडम बाबू. अभी हम दिखाएंगे इस पेज में. देखिए आपका सबसे बड़ा देखो किंगडम होता है. किंगडम में सबसे ज़्यादा लोग चीज़ें होती हैं. ठीक है, किंगडम में सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं. फिर दूसरे नंबर पर उससे छोटा क्या हुआ? फाइलम. उससे छोटा क्या हुआ? क्लास. उससे छोटा क्या हुआ? ऑर्डर. उसके छोटा क्या हुआ? फैमिली. उससे छोटा क्या हुआ? जीनस. उस सबसे छोटा क्या हुआ? स्पीशीज. तो सबसे बड़ा राजत्व है आपका किंगडम का. क्लियर है? तो हाईएस्ट लेवल क्या है? किंगडम. और लोएस्ट लेवल क्या है? स्पीशीज. धीरे 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 दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. योर डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर किस चीज़ का? अमाउंट ऑफ स्पीशीज कंटेन्ड. डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका है बेटा? अमाउंट ऑफ स्पीशीज कंटेन्ड. अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्ड. ठीक है, इज दिस ओके बेटू? Yes, ma'am. इज दिस ओके ना? तो चलो एक बार इसको देखते हैं.
देखो स्पीशीज़ में क्या है, स्पीशीज़ मैंने अभी आपको बताया, स्पीशीज़ है लोएस्ट लेवल, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर क्वालिटीज़, ये मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, क्या है, इंडिविजुअल हैव सिमिलर क्वालिटीज़। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू इनहेरिट अमंग देमसेल्व्स, मतलब उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड। जैसे ऑल कैट्स कम अंडर द सेम स्पीशीज़ कैटस, समझ में आ रहा है, ऑल कैट्स कम इन द सेम स्पीशीज कॉल्ड कैटस। तो स्पीशीज क्या हो गई, अभी ऐसे ही याद आपको मैं बताऊं कि आपका अभी याद हो जाए। जैसे कि सबसे छोटी क्या होती है, स्पीशीज। स्पीशीज में क्या होता है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अगर मैंने इन दोनों को स्पीशीज में सेम स्पीशीज में रखा है तो इंडिविजुअल जो के कैरेक्टर्स है वो सिमिलर हैं, और साथ ही साथ इनका हम लोग आप में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। अमंग ईच अदर हम इनका क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड। इसलिए जितने भी, फॉर एग्जांपल इसने दिया है कि जितने भी कैट्स हैं उन्हें हम सेम स्पीसीज में रखते हैं, और उस स्पीसीज का नाम क्या है, कैक्टस। क्या है, कैक्टस। नेक्स्ट आपका है जीनस, स्पीशीज के बाद थोड़ा सा बड़ा क्या है, जीनस। अच्छा, अब जीनस में क्या है, ऑर्गेनिज्म विच हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें स्पीशीज के, अब देखो इसमें क्या बोला है मैंने कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होंगे सेम कैरेक्टर्स होंगे, इसमें बोलेंगे हम लोग कि जो स्पीशीज होंगे उनके सेम कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, कम इन द सेम जीनस कॉल्ड पैंथेरा। लायन और टाइगर कौन से जीनस में आते हैं, सेम जीनस में आते हैं, और उस जीनस का नाम क्या है बाबू, पैंथेरा। क्या है, पैंथेरा। इसके बाद आपकी फैमिली आती है। फैमिली क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड जीनस, मतलब देखो पहले हम लोग स्पीशीज लिए, स्पीशीज का अब हम लोगों ने किस में इंक्लूजन किया, फैमिली में। क्यों, क्योंकि जीनस से थोड़ी बड़ी क्या होती है, फैमिली होती है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ व्हाट, रिलेटेड जीनस। जैसे फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, कैट ऑल केम इन फेलिडाई फैमिली। कौन सी, कौन सी फैमिली बेटा, फेलिडाई फैमिली। जैसे अभी मैं बोल रही थी ना, कैट, कैट सब के सब बिल्लियाँ होती हैं, कोई बड़ी बिल्ली छोटी बिल्ली। सो ये आपके लायन भी बिल्ली, ये भी बिल्ली, ये भी बिल्ली, तो ये इनकी फैमिली कौन सी है, फेलिडाई, बिकॉज ऑल आर टू द सेम जीनस। क्या, सेम जीनस, ओके। अरे अब फैमिली से थोड़ी बड़ी क्या होती है, ऑर्डर। क्या होती है, ऑर्डर। अब ऑर्डर में सिमिलर रिलेटेड फैमिलीज को रखते हैं, ऑर्डर में किसको रखते हैं, रिलेटेड फैमिलीज को। जैसे कि एग्जांपल पर आप देखो कि लायन, टाइगर, कैट, वुल्फ ऑल कैम इन सेम ऑर्डर, दैट इज कार्निवोरा। क्या कहते हैं, कार्निवोरा। क्लियर है ना, ये आपका बेसिक है, इसकी डिटेल में और हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी थोड़ा सा बेसिक्स जानो, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है आपका क्लास। क्या होता है, क्लास। हाँ बेटू, जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा मैम, जब हम लोग कभी बायो की इस तरह के चैप्टर को बिगिनिंग करते हैं तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कैट, अब देखो क्या है, नेक्स्ट है आपका क्लास। अब जैसे कार्निवोरा और आपका ऑर्डर प्राइमेट्स, ठीक है, विच आपके इसमें इंक्लूड आपके ह्यूमन भी आते हैं, सेम क्लास, जिसे हम क्या कहते हैं, मैमालिया। क्या कहते हैं, मैमालिया। जैसे कि सारे आपके जितने भी कार्निवोरस हैं, कुछ आपके प्राइमेट्स हैं, ठीक है, जो पहले है प्राइमेट्स, और जिसमें कि आपका ह्यूमन बीइंग भी है, इन सबको हम लोग मैमेलिया कहते हैं, ठीक है, ओके। फिर आपका आता है फाइलम। क्या आता है बेटा, फाइलम। तो रिलेटेड जितने भी क्लासेस होते हैं उन सबको हम फाइलम में रखते हैं। जैसे फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। अब फाइलम कॉर्डेटा में आपके क्लास मैमेलिया आता है, एव्स आता है, रेप्टिलिया आता है, पीसेस आते हैं, ठीक है, पीसेस आते हैं यानी कि फिशेस आते हैं। तो फाइलम क्या हुआ, क्लास से बड़ा हुआ, इसका मतलब देखो एक ही क्लास में रख दिया उसने। कॉर्डेटा वाली जो क्लास होती है उसमें आपका मैमेलिया भी आया, उसमें आपका एव्स यानी कि बर्ड्स भी आया, उसमें आपका रेप्टिलिया यानी कि वो जो रेप्टाइल्स, सांप और मगरमच्छ वगैरह जो हैं वो भी, क्रोकोडाइल वगैरह भी आए, और पीस यानी कि आपके फिशेस भी आए। क्लियर है ना, यस मैम, कोई कंफ्यूजन, नो मैम, ओके। नेक्स्ट है आपका किंगडम। तो किंगडम क्या हुआ बेटा, फाइलम से थोड़ा बड़ा होता है, किंगडम क्या होता है, फाइलम से बड़ा होता है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो फाइलम से जब ये बड़ा होगा तो इसमें कुछ आते हैं एग्जांपल की तरह, ऑल एनिमल्स कम अंडर किंगडम एनिमलिया। उसी तरह आप बोलोगे ऑल प्लांट्स केम इन द किंगडम प्लांटिया, प्लांट किंगडम। पढ़ते हो ना, बुक में भी लिखा होता है प्लांट किंगडम, ओके।
Yes, तो ये हमारा जो था वो जनरल इंट्रोडक्शन था किसके ऊपर, कि कैसे हम इसके हायरार्की को क्लासिफाई किए हैं, क्या क्या उसमें हर एक स्टेज पर हमने क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज डाली है। ओके, yes, ma'am. अब ये वाला डायग्राम तो मैंने बता दिया आपको, ये वाला Yes, ma'am. ये वाला डायग्राम बता दिया कि कौन सबसे बड़ा है। इसके बाद पेज पे देखो, इसके बाद वाला पेज क्या बता रहा है बेटा, कि सबसे पहले आपकी क्या आ गई, इसका मतलब स्पीशीज आ गई, फिर जीनस आ गया, फिर फैमिली आ गई, फिर ऑर्डर आ गया, फिर क्लास आ गया, फिर फाइलम आ गया, फिर किंगडम आ गया। किंगडम वही एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, सबसे बड़ा जो है वो किंगडम का होता है। ठीक है, Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री बता रहा है कि कौन कैसे पहले के ज़माने में कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका प्लांट्स है और एनिमल्स है। फिर प्लांट्स को उसके स्टेम के ऊपर बेस्ड करके क्या किया गया, हर्ब, श्रब और ट्रीज में, जबकि जबकि इसको क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम को, तो जो आपके पानी में रहते हैं, जो आपके लैंड में रहते हैं, और जो आपके हवा में रहते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये आपका पहले के ज़माने में ऐसा क्लासिफिकेशन था। सी लिखा हुआ है, वन ऑफ द अर्लीस्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज द प्रोवाइड द इंटीरियर इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। किससे करेंगे शुरुआत बेटा जी, किंगडम। तो टोटल हमारे पास 5 किंगडम्स होते हैं, शुरुआत हम लोग करेंगे किंगडम। ठीक है, और क्योंकि किंगडम क्या है, इस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा है, हाईएस्ट। ठीक है, सबसे बड़ा यही है क्लासिफिकेशन का। बट हमारे पास किंगडम कितने हैं, 5 किंगडम्स हैं। 5. हाउ मेनी किंगडम्स वी हैव, 5 किंगडम्स। ठीक है, तो किसने इसको अलग किया, आपके विस टैकर। ये देखो, कुछ कुछ नाम बाबू याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अभी काम नहीं आएगा लेकिन बाद में जीके में ज़रूर काम आएगा। ठीक है, अभी भले ही काम नहीं आए लेकिन बाद में जीके में बहुत काम आता है। ये सारी चीज़ें याद रखना दिमाग में, क्लियर है। तो कल से जो हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको जब अंडरलाइन कर दूँ ना, अब अभी तो आप समझना क्लास के ड्यूरेशन, बिकॉज 1 घंटा उसमें लिखना पढ़ना, ये वो सारी चीज़ें हेक्टिक हो जाएगी। कल से ना आप 4-5 पेज में ये किंगडम वाले जो लाइन लगा दूँगी ना, मैं जो लाइन लगा दूँगी, आप उसको अपने हाथ से लिखना और फिर मुझे फ़ोटो सेंड करना। इसको आपको याद करना पड़ेगा, हर महीने आपको डेट फिक्स करके याद करना पड़ेगा। हम लोग हर महीने किंगडम का टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो किंगडम फिर आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि किंगडम को हमेशा याद रखना पड़ता है। इट इज़ वेरी लेंदी काइंड ऑफ थिंग। ओके।